Page 87. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप सबको प्राप्त हो। Christos Ignatius Stephen Reverend Father John May, Parish Priest and Director, Seymour Santi. Reverend Father Sudeep IMS, Parish Priest of Preta, Kendroda. Reverend Father Deepak IMS, Reverend Father Anand IMS, Reverend Fathers, brothers, sisters, our Sister Florina and Sister Celestia Promise, the nieces of Sister Celestine, well-wishers and friends. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. From now on, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. 2 Timothy chapter 4, verses 7 and 8. We are in great sorrow over the sudden demise of our dear Sister Celestine.
due to cardiac arrest. Her earthly pilgrimage came to an end as the Lord called her to himself on 16 June 2024 at 11:45 p.m. Sister Celestine was 74 years old, hardworking and pleasant all through her life. We thank God for the steadfast love and the faithfulness of the Lord that Sister Celestine experienced for the past 52 years of her religious life. We have come together around this Eucharistic table to bid farewell to our beloved Sister Celestine, who was from the third batch of our sisters. Sister Celestine was a member of our community at Gedlora for the last 3 years, where she spent her time in prayer and teaching homilies. Sister was actively involved in teaching catechism, preparing children for sacraments, conducting rosary in the church, remedial classes for weaker Catholic students, preparing church articles, and seeing to the Sunday preparation for the Holy Mass. She was very regular and punctual for all community spiritual exercises. She was a great devotee of Mother Mary and was often found praying rosary. On Sundays, she would gather all the small children and make them sit around her during the Holy Mass. She was very kind and affectionate towards children and had a great passion for them. Since a few years, Sister Celestine was suffering from various illnesses and she was unable to walk with ease. She was under medication for a long time for diabetes. Since the last 3 days, Sister Celestine was feeling uneasy and her intake of food had reduced. The sisters repeatedly told her to go to hospital, but she kept refusing, saying it is due to heat and I will be all right. On 16th June in the evening, she took back and the sisters forcefully brought her to St. Luke's Hospital. On the way to Sunday, Sister Celestine vomited blood and she breathed at last. The sisters in her community recalled how Sister Celestine had been an inspiration to them. She was very obedient and respectful towards the authorities. In spite of her ill health, she was never late for prayer. On 10th August 1950, a girl child was born in Vadakar family to Mr. George and Mrs. Annama as their youngest child. She was christened as Selena. God favored their family with 9 children, 5 girls and 4 boys. God's mercy continued to rest upon his family as Selena was called by the Lord to embrace religious life at the age of 17. Considering everything as lost because of the surpassing value of knowing Christ Jesus, she bid goodbye to her loved ones and joined the congregation of the Franciscan Sisters of Our Lady of Jesus in July 1967. She took her first vows on 11 February 1972, taking the name Sister Celestine, and made her overture vows on 30th May 1978. Sister Celestine rendered a generous and loving service as an efficient teacher and pastoral worker. She extended her ministries to the people of Tajpur, Sardana, Jwalapur, Rampur, Dakhatar, Ghaziabad, Saharanpur, Gedroda, Meerut, Devapal, and currently in Gedroda.
God, the liberty of the hours, and her personal encounter with Jesus every day. She was a person of deep faith and imparted that faith to the children through teaching catechism till her last day. She was entirely religious, honest, generous, and hardworking. She was self-disciplined and very systematic in her life. Sister Celestine was indeed a great missionary and an eager pioneer who worked for the Lord and His people with a great love, commitment, zeal, and enthusiasm. She never disturbed anyone in the community and tried to do all her personal work on her own and had great concern for the sick sisters. She glorified God through her life of love and service in the congregation and in the church. Her life of prayer, spiritual sacrifice, simplicity, love for the poor, and eagerness to give Jesus and His values to those whom she met have been an inspiration to all of us. She was a great teacher, and her students remember her fondly. Our dear Sister Celestine was an instrument in the hand of the Lord to lead and guide the children to follow the right path. She was one of those who walked extra mile, especially with the children in the footsteps of the Lord. She lived the charism of our congregation in and through her life and mission. We offer our deepest sympathies and prayerful support to the near and dear ones of our beloved Sister Celestine. We ever remain indebted to her family for giving Sister Celestine to our congregation. She has joined her brother priest, Reverend Father Matthew Adakayam, and all other siblings except one sister to sing eternal praises to their Creator. Our dear Sister Celestine, we bid you farewell and commend you in God's loving hands. We remember you with affection and fond love. Now that you are with God, please pray for us and implore God's blessings on us and all whose life you have blessed. Once again, we bid you, dear Sister Celestine. This shall be our consolation to remember that the day will come when our entire community, once more united in heaven, shall be able to sing of your glory and your goodness forever. और अन्य धर्म बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े दुख के साथ हम सिस्टर सेलेस्टिना की लाश लाए हैं कि हमारे इस दफन विधि में मांगने के लिए, और हमें यह कथन याद आता है, प्रभु ने दिया और प्रभु ने दिया। जो ने कहा प्रभु ने दिया और प्रभु ने दिया। प्रभु ने सिस्टर सेलेस्टिन को एफएसएलसी धर्म समाज के एक विभिन्न अंग बनकर उनको दिया और प्रभु ने भी समय पर उनको दे दिया। प्रभु को धन्यवाद, थैंक्स बी टू गॉड। हम ज़्यादा दुखी होने की समय नहीं है, लेकिन हम सिस्टर सेलेस्टिन के लिए धन्यवाद देंगे प्रभु को कि ऐसे महान सिस्टर को हमारे लिए दिया कि हमारे समाज में और हमारे पल्लियों में कार्य करने के लिए, और उनको प्रभु ने लिया। प्रभु को
धन्यवाद देते हुए हम इस महान आत्मा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रिय सिस्टर सरस्वती को अनंत शांति प्रदान करें जो हम सबों को भी मिलने वाला है। आइए हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपके सामने से गाती हूँ कि मैंने मनुष्य धर्म से और अपने कसूर से अपने माता से जो किया है सब सबको और आप लोगों से ये बातें बहनों क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। In number 11 on page 4. सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। तेरी सेविका सिस्टर सरस्वती ने क्रिस्त के विश्वास करते हुए प्राण त्यागे हैं। ये उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। हम जाने घर
and for the gospel proclamation. प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करके हुए जीता है, वे कभी नहीं मरेगा। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को ये पता चला कि लाजर 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मरता और मरीम से मिलने आए थे। जो उनकी माता ने ये सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। माता ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। माता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि वो मसीह ईश्वर के पुत्र है, जो संसार में आने वाले थे। हे प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। Tanto bene, vorrei ringraziare Padre बिशप वॉरेन हैम्पटन के नाम पे एक यूनिवर्सिटी में ईश शास्त्र का एक डिपार्टमेंट खुला है। और जब वे मरने पर थे, उनके कोई दोस्त उनके पास थे और उनसे पूछने लगे, बिशप जी, आप सीधे सच सच बताइए कि आपको डर नहीं लग रहा है? आपको ये मौत की नदी पार करते हुए आपको डर नहीं लग रहा है क्या? सच बताइए। तो बिशप वॉरेन ने कहा, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं उनका पुत्र हूँ, उस पिता का पुत्र हूँ जिन्होंने दोनों तरफ नदियों के दोनों तरफ का जो जमीन है वो पूछता है। He is the father who owns land on both sides of the river. तो मुझे क्यों डर है? यानी हम यहाँ जीते या वहाँ जीते, एक ही बात है। और हमारे
बेटी है सिस्टर सेलेस्टिन, उनका नाम ही सेलेस्टिन है, मतलब है हेवनली बीइंग, सेलेस्टियल बॉडी। और ये विश्वास करते हुए जीती रहती है कि यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नया जीवन का संचार होता रहता है। नया जीवन का संचार यानी we live not by sight but faith in the Lord। आज के पहले वाक्य हमने सुना है, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का नहीं बना है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। ये जो हम जी रहे हैं वो तंबू में जी रहे हैं। टेंट इज नॉट अ परमानेंट थिंग, लेकिन जो घर हमें मिलेगा वो अनंत काल तक रहेगा, अ परमानेंट हाउस। और इसी विश्वास, इसी बात पर, इस वचन पर विश्वास करते हुए हमारे सदस्य ने उनकी आंखें हमेशा प्रभु पर टिकी हुई, और 1 साल 2 साल नहीं 52 साल यानी 75 साल शुरू से ही उनके वो जीवन में विश्वास बनी रही। और खासकर सिस्टर बनने के बाद, धर्म समाज में प्रवेश करने के बाद 52 वर्ष प्रभु के साथ चली है, और जो प्रभु ने उनको बताया वो यही काम किया है। और कहा गया है कि सिस्टर एक डिवोटी है, क्रिस्टल मां मरियम का डिवोटी है, हमेशा मां मरियम की रोज़री या माला ड्यूटी करती थी, और उन्होंने अपना पूरा समय प्रभु के लिए दिया, और एफएसएनजी धर्म समाज के लिए पूरा समय यानी 52 वर्ष उन्होंने दिया है। और बच्चों के कारण, छोटे बच्चों के कारण, बच्चों को कैटेकिज्म पढ़ाने में, बच्चों के स्कूल में काम करते हुए उन्होंने जो अच्छे शब्द उनको कहा है, मीठी मीठी बातें वो कहा है, वही बड़ी बात है। संत कहते हैं कि जो मीठी बातें करते दूसरों से वही उनको जीवन देता है, दूसरे लोगों को वो जीवन प्रदान करता है। मैं समझता हूँ सिस्टर सेलेस्टिन को वही किया होगा, कई साल वो स्कूल में रही, बच्चों के साथ मिलजुल कर बच्चों को सही मार्गदर्शन दिलाया, और बच्चों की खासकर अब फेथ में, उनको विश्वास में उनको गहरा किया है, और वही हमारे बहन ने किया है। और प्रभु हमारे बहन ने इस पर विश्वास किया। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। अब हम विश्वास करते हैं कि हमारी बहन सरस्वती की आत्मा ईश्वर की आत्मा है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होती है। हम आज बड़े दुख के साथ इस विश्वास के साथ ही हम आए हैं कि हम सिस्टर सेलेस्टिन को विदाई देंगे, और हमें याद आता है जो संगीत का 23वां अध्याय, जिसमें कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है। और इसमें गौर करने की बात है कि 3 वाक्य के बाद, 3 संख्या के बाद क्या होता है, तो पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, वह मुझे, वह यानी 4%, तीसरे आदमी, वह प्रभु मुझे हर मैदान में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अब प्रभु को कहा गया है वह है, लेकिन 4वें वाक्य में हम पढ़ेंगे, चाहे अंधेरी घाट होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे अभी
तू मेरे, यानी हमारी बहन क्रिस्टिया भी यही, सरस्वती भी यही कह रही है कि अभी तू मेरा, बहन नहीं तू, यानी सीधे प्रभु से बात कर रही है। तू मेरे साथ रहता है, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब कर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। चिरकाल तक यानी अनंत काल तक मैं प्रभु के मंदिर में निवास करती रहूंगी। यही सीधे प्रभु से बात करती होगी। और आज हम इस बात का वर्णन करते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में नहीं गिरकर मरता नहीं है, वह फल नहीं दे सकता। और हमारी बहन सिस्टर सरसिना पूरी तरह से मिट्टी में मिलकर ये फल नहीं किया है। I think that Celestine did not know the meaning of harm. From the outset, she invested every bit of herself in her undertaking. Every bit, wherever she was, she gave her whole life, not half-hearted giving. The whole life she dedicated to the Lord. She was always more likely to go extra mile to the children, the poor, the downtrodden children, the weak children. I'm sure she went to them. She made an extra effort, extra mile to educate them, to teach catechism to them. I have fought a good fight. हमारे सिस्टर सरस्वती जी ये शब्द है, I have fought a good fight. I have finished the race. अब हमारी फाइट है और सिस्टर सरस्वती हमेशा प्रभु में जीवित रहेगी। अब when the great Christian scientist Sir Michael Faraday was dying, some journalists went and questioned him as to his speculations about life after death. Life after death के बाद क्या होगा? उन्होंने कहा, मुझे क्या स्पेकुलेशन करना है? मैं तो पक्का जानता हूँ, मेरे प्रभु जी रहे हैं और इनके साथ मैं जीऊंगा। और यही विश्वास के साथ हमारे सिस्टर सरस्वती ने जिया। प्रभुमान और जीवन नए हो, जो मुझ पर विश्वास करके जीता है, वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, वह मरने तक ही जीवित रहेगा। और यही शब्द हमें आश्वासन देता है प्यारे भाई और बहनों। आज हम हमारे प्रिय बहन सिस्टर सरस्वती के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उस विश्वास को, जो विश्वास के साथ वो जी 52 वर्ष लगातार प्रभु की सेवा और प्रभु की सेवा करती रहेगी, उस सेवा को वह रिवॉर्ड दे, उसकी सेवा को जो उनकी इच्छा के अनुसार जी है, उसके लिए उसको जो आश्वासन दिया था, जो घर उनके लिए तैयार किया था, वो उनको प्रदान करें। आज हम भी अपने जीवन को कठोर पर देखें और प्रभु से यही प्रार्थना करें जिन्होंने से बहुत सुंदर से कहा, May He give us all the courage that we need to go the way that He shepherds us, or the courage to go the way He wants us to go. That when He calls, we may go unfrightened. If He bids us come to Him across the waters, that unfrightened we may go. And if He bids us climb the hill, may we not notice that it is a hill, mindful only of the happiness of His company. He made us for Himself, that we should travel with Him and see Him at last in His unveiled beauty, in the abiding city, where He is light and happiness and endless hope. आइए हम इस बलिदान में
सरस्वती के लिए शिक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हम भी उनके समान एक शांत जीवन, एक समर्पित जीवन जिए और प्रभु के लिए हमेशा जीते रहे, ताकि वो मुकुट हमें प्राप्त होगा जो प्रभु ने हमें वादा किया है। Number 202B on page 132. मेरा और आप अपने बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी सेविका सरस्वती की मुक्ति के लिए हम यह बलिदान अर्पित करते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में ये तेरे पुत्र को अपना प्रेमी मुक्तिदाता मानेंगे। अब ये उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए, जो युगानुग बीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु ने मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, जिन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें, जिन्होंने अकेला मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे समूह सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। Hymn number 43. Thank you.
हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा बलिदान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन त्योहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी की तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इससे खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पी लो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवता का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर और यह बलिदान स्वीकार है, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा अनंत उपहार स्वरूप ले चढ़ाए और ईश्वर की माता पर धन वाले मरियम और उनके वर धनियों से तेरे धन्य प्रेरितों को ताकत से लो और सभी संतों के साथ हमें भी उनके उनकी कानून के सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। प्रभु तुझसे निवेदन में हमारे प्रकट कार्य करे, समस्त संसार में शांति और ज्ञान की वृद्धि करे। अपने सेवक संविदा फ्रांसिस हमारे धर्मात्य भाषण सिराय सभी धर्मात्य को सभी याद को तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करो। तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की आत्मा आपने स्वीकार की। दया से प्रेरित होकर तू अपने सभी प्रियों को वे जहाँ मेरी अपने साथ बनाए। अपने सेविका स्वर्गीय शिशु सरस्वती की सुनी ले, जिनको तूने शुरू से अपने यहाँ बना लिया, उन्हें अवश्य से बत्तीस में
तेरे पुत्र की मृत्यु की सौभाग्य की शरीर की दृढ़ता का भी सौभाग्य प्राप्त कर। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुसार बना देंगे। हमारे गुरुवायों में और उन सब जो भी तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे वे आपको अपने राज्य में प्रवेश पाने दें। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं। वहाँ हम सब एक साथ एक महिमा के दर्शन से अनंत काल तक मुक्त होते रहेंगे। इस समय ये हमारे यीशु तो हमारे सब आंसू पहुँच देगा, क्योंकि हम तेरा उद्धार दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी उद्धार प्राप्त होते हैं। तेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा तेरे स्वाद और नीति हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा number 279A. 279A.
The Lord says, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though their eyes will live. St. John chapter 11, verse 25. Your Lordship, Christ, Roman Pastor, Church, Reverend Father Valerian Video. Vicar General, Reverend Father Caston, Irish priest of St. Peter's Church, Canada. Reverend Father John Messenger, Parish priest and director of St. Luke's Hospital, Cyprus. Reverend Father Sudhir Ayamas, Parish priest of Brenda. Reverend Father Deepak Ayamas, Reverend Father Anand Ayamas. Reverend Fathers, brothers, sisters, our dear Sister Florina and Sister Teres Siapamas, the niece of Sister Celestine, well-wishers and friends. On behalf of the entire FSLG family, I would like to express my gratitude to everyone present here for having so kindly joined us in this hour of deed and loss as we bid farewell to our dear Sister Celestine. The psalmist reminds us that even when our hearts stop beating, our flesh comes to an end. God continues to be the strength of our heart and portion for all eternity. Not even death can keep us from His kindness, mercy, and the treasure of His presence. This truth gives us consolation and comfort at the sad demise of our beloved Sister Celestine. I express my gratitude to the Reverend Father Bhaskar Bishop of Meerut, for celebrating the Holy Feast for our dear Sister Celestine and praying for her. I appreciate for having availed yourself for this funeral service of our dear sister and for your inspiring home at Sophia, where especially we put our gratitude of joy. The God has taken it by praise to be the name of the Lord. I extend a note of thanks to Reverend Father Caston, Parish priest of St. Peter's Church, Canada. Reverend Father John and the fathers of my community for offering the Holy Feast this morning for our dear Sister Celestine at her general age. Thank you, dear fathers, for your presence, your concern, and sense of solidarity with us. We thank Reverend Father John for Reverend Father Owen Nelson and Reverend Father Roy for your timely assistance. I would like to thank the doctors at St. Luke's Hospital and our sisters for assisting Sister Celestine in her last moments. We owe special thanks to Sisters Preeti and her community at Vigorola, who have been with her for the last 3 years of her life and rendered friendly support and comfort to her generously. I express my profound gratitude to all the priests, religious, and friends for supporting us with your consoling presence and wonderful prayers for our dear Sister Celestine. A special word of thanks to Reverend Father Ayamas and the community at Brahma, Vigorola, for all the spiritual assistance rendered to our dear Sister Celestine during her life in Vigorola, and for your brotherly love and care. Our sincere thanks to everyone present here for having joined us in this Eucharistic celebration to pray for our dear Sister Celestine, to the Almighty God, who is Lord of life and death. May the merciful Savior and divine spouse welcome her into the company of all the angels and saints in heaven. A special word of thanks to Reverend Father Justin for the video and the funeral service of our dear sister.
On behalf of the fathers over here and all the priests of the diocese, I express my heartfelt sympathies to you, dear sisters and all the sisters of FSLG. May the Lord comfort us and solace us, and also the needs and relations of Sister Celestine. May all of us live life as she did, so that we may one day rejoice with her in heaven. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संबंध दिया है। इसी से बल पाकर हमारी बहन सिस्टर सेलेस्टीन क्रिस्त के अनंत भोज में भी सहभागी बन जाए, तो युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वृद्ध व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन सिस्टर सेलेस्टीन की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन फल देकर पुनर्जीवित करें और इस बहन को संतों की संगति में रखें। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गणेरिये की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। देर न हो, अब देर न हो। प्रभु के दूतों संतों, स्वागत है इस आत्मा को अर्पित आप करें प्रभु को। कि ईश्वर के संतों, उसकी सहायता करने आइए। कि प्रभु के दूतगण उसकी अगुवानी करने आइए और उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। दूध उठाकर इब्राहिम की गोद में इसको सज्जित करने, प्रेम भरे निज कर कमलों से प्रभुवर इसका अर्पण लेने। कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है, वही तुम्हारा स्वागत करे और स्वर्गदूत तुम्हें इब्राहिम की गोद में ले जाए। उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। देव प्रभु इसको शांति अपार चमके इस पर परम
प्रकाश स्वागत करें दूत संत सब पहुँचे अब यह स्वर्ग निवास। हे प्रभु उसे अनंत शांति प्रदान कर, उसे अनंत ज्योति से आलोकित कर, उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी बहन सिस्टर सेलेस्टी की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सबों के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेगी और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेगी। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों में हम सबों के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारी बहन सिस्टर सेलेस्टी के लिए खोल दे। हम सबों से ये बहन विदा हो गई है। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस बात की हम तुझसे और इस बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। जय जय तेरा स्वागत गाकर दूत स्वर्ग का द्वार खोल दे, आकर अमर शहीद तुझे भी नगर के में ले चले। दूत संत प्रभुवर के सारे गावे तेरा जय जय गान, बसे सदा तू अमर शांति में जहां लाजरस नहीं होता। Hymn number 459 459